Good afternoon, students. In the previous session, we have covered uniform speed and non-uniform speed. So, almost we are done with the speed and velocity concept. But few of the examples are there which we need to understand. So, over here, I am giving you or will be together solving some examples related to the speed, average speed, and velocity. Okay. So first we'll go through the formulas. Okay, so what is the formula of speed? The speed is equal to distance upon time, where we measure distance in the meter and time in second. Okay, so we'll be getting the speed in terms of meter per second. Same way, velocity is equal to displacement upon time. Okay, displacement also we measure in a meter, time we measure in a second. So again we'll be getting velocity in a meter per second. Here average speed is there. Okay, so average speed means what? So we'll take speed 1 plus speed 2 plus speed 3 and any number of speeds which are given in the example. Okay, so let's see, let's say 3 speeds are given. So if 3 speeds are given, then we take 3 as a number at a denominator. Okay, if 4 speeds are given, means speed number 1, speed number 2, speed number 3, speed number 4. So altogether 4 speeds are then we'll take 4 at the denominator. Okay, so this is what the formula. Okay, in the below example, 2 formulas will get clear over here. Okay, and how we are solving this, let's see. So the question number 1 is, suppose an object moves, that object can be anything. Let's say car. The object moves 18 meter, it's a distance, in the first 3 seconds. This is the time. Okay, so this is the distance 1 and this is time 1, because there are several other distance and time as well, right? An object moves 18 meter in the first 3 seconds, 20 meter in the next 3 seconds, and again 14 meter distance in last 3 seconds. So basically there are 3 distances: 18 meter, 22 meter, 14 meter. So this is distance 1, this is distance 2, this is distance 3, and time is, this is time 1, again time 2, and this is time 3. Okay, so altogether this information has given, and they are asking you for the average speed. Now in the average speed, what is the formula? We need to calculate the speed. So if 4 speeds are given, then we need to divide by 4. But over here, speed is not given. Okay, so we need to calculate the speed. Okay, consecutive speed means ये डिस्टेंस दिया है, ये टाइम दिया है, तो इनका पहले मुझे स्पीड निकालना पड़ेगा. सिंस देखो यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है. डिस्टेंस एंड टाइम से हम लोग को स्पीड मिलेगा. तो डिस्टेंस 1 एंड टाइम 1 से हम लोग को स्पीड 1 मिलेगा. डिस्टेंस 2 एंड टाइम 2 से मुझे स्पीड 2 मिलेगा. डिस्टेंस 3 एंड टाइम 3 से मुझे स्पीड 3 मिलेगा. स्पीड 3 मिलेगा. ओके, सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन? द गिवन इंफॉर्मेशन इज डिस्टेंस 1 18 मीटर, टाइम 1 3 सेकेंड. डिस्टेंस 2 क्या है? 22 मीटर. टाइम क्या दिया है? नेक्स्ट 3 सेकेंड. नेक्स्ट वाला डिस्टेंस क्या दिया है? 14 मीटर, और टाइम क्या दिया है? 3 सेकेंड. तो मुझे 3 डिस्टेंस दिए है और 3 डिस्टेंस के अगेंस्ट 3 टाइम दिए है. ओके, टाइम सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट अनइक्वल डिस्टेंसेस. तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, ये तो आपको पता चल गया. बट उन्होंने हम लोग को पूछा है एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड. उन्होंने पूछा है, हम लोग का क्वेश्चन है एवरेज स्पीड, तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो नाउ हम लोग को क्या करना है? एवरेज स्पीड निकालना है. ओके, तो हम लोग को एवरेज स्पीड को जाने के पहले हमारे फॉर्मूला में क्या लिखा है? एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में क्या लिखा है? स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3. हमारे पास वो नहीं है. तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट डिस्टेंस के अगेंस्ट क्या क्या स्पीड है विल कैलकुलेट. तो पहले ये डिस्टेंस के अगेंस्ट ये टाइम है ना, तो इसका पहला स्पीड निकाल लेते हैं. तो स्पीड 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1. ओके, तो हम लोग ने पहले ये लिया, इसका स्पीड निकालेंगे. डिस्टेंस 1 क्या दिया है? 18, तो हम लोग ने 18 मीटर लिखा. यहाँ पे टाइम 1 है, तो हम लोग ने
3 सेकेंड्स लिखा। ओके, यूनिट को भी साथ में ही रखो। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 6 मीटर पर 1 सेकेंड। मतलब हम लोग को फाइनली क्या मिला, 6/1 क्या है 6, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर पर सेकेंड हुआ। देन विल गो फॉर द सेकेंड स्पीड। सेकेंड स्पीड के लिए हम लोग को सेकेंड डिस्टेंस चाहिए, सेकेंड टाइम मीन्स डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2। तो डिस्टेंस 2 क्या है 22 मीटर, टाइम 2 क्या है 3 सेकेंड्स। ओके, तो हम लोग को उनका ही रेशियो लेना है, मीटर और सेकेंड को दूर नहीं करना है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, कितना बचा 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, पॉइंट देंगे। तो 1 का क्या हुआ 10, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1। पॉइंट है इसलिए वो 1 का क्या होगा 10। तो अगेन हम लोग को 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया 7.33 रिकरिंग 33, ऐसे हम लोग लेंगे और डिवाइड बाय 1। बट यहाँ पे 7.33 क्या है मीटर अपॉन 1 क्या है सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑट इट। देन नेक्स्ट स्पीड 3 विल कैलकुलेट। स्पीड 3 के लिए हमारे पास डिस्टेंस थर्ड है, थर्ड डिस्टेंस एंड थर्ड टाइम। तो डिस्टेंस 3 अपॉन टाइम 3। तो हम लोग के पास डिस्टेंस कितना है 14, तो हम लोग ने यहाँ पे 14 लिया है। और टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड लिया है। ओके, वहाँ पे एस सेक है, यहाँ पे एस लिखा है, चलेगा। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे 3 1 जा, ओके 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना बचा 2, पॉइंट दिया तो 20 हो गया। 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया तो कितना बचा, अगेन 2 बचा, पॉइंट है इसलिए वो 2 का फिर से 20 हो जाएगा और अगेन 6 आएगा। उसके बाद कितना बचा, मतलब 18 का हुआ, उसके बाद क्या बचा 2, अगेन पॉइंट है तो अगेन वो 20 बनेगा, 2 का 20। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे 6। तो देखा जाए तो ये तो थर्ड डिजिट है। ओके, 4.666, ये थर्ड डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है। कोई भी डिजिट थर्ड डिजिट, ओके पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं और ये वाले डिजिट को, सेकेंड डिजिट को हम लोग 1 से इंक्रीज करते हैं। मतलब ये बन जाएगा 7। 7 क्यों बनेगा, बिकॉज ये 5 से बड़ा है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर आएगा 4.6 का 6। बट ये जो सेकेंड है इसको हम लोग क्या करेंगे 7 करेंगे। ओके, मीटर का मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड। ओके, तो फाइनली क्या हुआ 4.67। 1 तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड ये पहला स्पीड, 7.33 मीटर पर सेकेंड दूसरा स्पीड, 4.67 मीटर पर सेकेंड तीसरा स्पीड मिला। तो हमारे पास अभी कितने स्पीड मिले हैं 3। तो इन 3 स्पीड का मतलब ये वालों का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्पीड, सेकेंड स्पीड, थर्ड स्पीड। तो अभी मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या था एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड निकालना। तो बाय द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, मैंने आपको एवरेज स्पीड पहले शीट में भी दिया था। तो स्पीड 1 हमारे पास स्पीड 3 है राइट, तो हम लोग क्या करेंगे 3 स्पीड का ही निकाल सकते हैं। तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 प्लस स्पीड 3 डिवाइड बाय 3 है इसलिए डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास स्पीड 1 क्या है 6, स्पीड 2 क्या है 7.33 प्लस ये क्या है 4.67। आप इनका एडिशन करके देखो। ओके, लेट्स डू इट ओवर हियर। 33 4.67 3 प्लस 7 0। ओके, 6 प्लस 3 प्लस 1 0, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट, 7 प्लस 4 11 एंड दिस इज 12 एंड 12 प्लस ये 6, 12 प्लस ये 6 कितना हो गया 18। तो मुझे बताओ यहाँ पे 3 1 जा और 3 6 जा, मुझे बताओ इनका जो टोटल आएगा वो मीटर ही रहेगा ना।
ये भी मीटर, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो ये आंसर मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, मतलब ये 18 भी मीटर पर सेकेंड ही है, डिवाइड बाय 3, इसका कुछ यूनिट नहीं है, ये नंबर है। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, ये 1 जा, ये 6 जा, 3 1 जा 3 6 जा। हेंस हमारा जो आंसर है एवरेज स्पीड का, वो क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को ये क्वेश्चन का आंसर मिला, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। होप सो यू अंडरस्टूड दिस होल आंसर. Okay, I will be giving you one example which you can solve from your side. Okay, and you will get that question over here. So this question you have to solve. A person swims 100 meter in the first 40 second, 80 meter in the next 40 second, and 45 meter in the last 20 second. What is the average speed? So this is your homework. Okay, you have to solve this example and this one as well. Okay, hope so you understood this one. Okay, thank you.